Good afternoon, everyone. I, Kritika Sati, Assistant Professor, DME Media School, welcome you all to this special webinar series, Media Master, where we explore various aspects of journalism and mass communication. The Media Master series is organized by DME Media School, Delhi Metropolitan Education, an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University and approved by Bar Council of India. The institute offers BBA, BALLB, BBALLB, and BAJMC programs. DME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them to take up the challenges of the industry and create a space for themselves with their competence and vigor. Today, we have gathered for the 5th episode of Media Master, where we will be discussing about language media. In the previous episode, we have discussed about media scenario and opportunities in print and broadcast media. And our upcoming episode comprises webinar on digital and social media, which will be held on Wednesday, 29 July between 3 to 4 p.m. through Zoom platform. It will be moderated by Mr. Ritik Ghosh, Assistant Professor, DME Media School. You can register yourself for the session. The link will be provided in the chat box. Today we will be discussing on a very important aspect of media, that is language media. To discuss this interesting topic, we have with us two very notable personalities. Expert for the session, Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School and Director DME Studios and Productions, and Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, who is also the panelist of the session and will help us in understanding the basics of language media, its scope, and other related issues. Dr. Amrish Saxena is an accomplished media professional, researcher, author, anchor, and political analyst. He has worked at different media platforms ranging from theatre, puppetry, print, radio, television, films, and digital before switching over to media academics and research. At present, he is working with Delhi Metropolitan Education as Professor and Dean, DME Media School and Director of DME Studios and Production. Dr. Saxena has played a long inning in active journalism, having association with groups like The Pioneer and Amrit Bazar Patrika during 1980s. He has worked as correspondent for the first ever TV Hindi news magazine, Parak on Doordarshan during 1990s. He has been anchoring the highly rated program of AIR Gold, FM Gold, Market Mantra for close to 2 decades. Dr. Saxena has academic association with more than 20 universities, which include 4 central, 5 state, and 9 private and deemed universities. He has 36 books to his credit as sole author, main author, chapter writer, and editor. He has more than 60 research papers presented in national and international seminars and conferences. Dr. Saxena has extensive international exposure. He has visited China, Australia, United States, Dubai, Egypt, Spain, and France as part of his academic endeavors. He is a member of International Association of Media and Communication Research, IAMCR. In 2019, he made a presentation on innovation in journalism education as the sole representative of Asia in World Journalism Education Congress in Paris. I welcome you, sir. Now let me introduce you to one of the most distinguished media educators, a leader and motivator, and the driving force of DME Media School, Dr. Susmita Bala. Dr. Bala is the head of DME Media School, Delhi Metropolitan Education. She is an accomplished teacher and trainer equipped with rich experience in media industry and academics for more than 3 decades. She started her career as journalist in Dainik Jagran newspaper in 1986 and turned to media teaching at Agrasen Girls PG. She has taught in colleges of GGSIPU University, namely MBSEM and WIPS. As visiting faculty, she has also been teaching at Bharati Vidya Bhavan, YMCA Media Center, and India Today Media Institute. Dr. Susmita has visited Chinese universities as part of delegation of Indian academicians. She has also attended a media conference and film festival in RMIT University, Melbourne, Australia. She has presented papers in Portland and Eugene in the United States.
as part of the pre-conference and conference organized by International Association of Media and Communication Research. She has presented more than 30 papers in national, international seminars and conferences in the country and outside. In 2019, Dr. Susmita presented a paper in Manipal International Media Research Conference in Dubai, organized by Manipal Academy of Higher Education, Dubai, and Queen Mary University, London. She also presented a paper in one of the sections in Madrid conference organized by International Association of Media and Communication Research, and made a presentation on innovation in journalism education under Ignite in World Journalism Education Congress in Paris. Dr. Susmita has authored 2 books, co-authored 2 books, edited 2 books, co-edited 3 books, and written chapters in 3 books. She has been a member of jury of Akashvani Awards organized by AIR for many years. She has been the executive producer of a full-length students' film, apart from supervising many documentaries, film projects of the students. She has also been a member of nomination jury in the International Science Film Festival organized by the Department of Science and Technology, Government of India in 2018 and 19. I welcome you, ma'am. Thank you. It is a great fortune today to have 2 such distinguished personalities together on this platform. Before we start, I request all media aspirants, professionals, and my fellow teachers, if you have any questions, please write them in the chat box. I will take the questions on your behalf during the question and answer round. I also request everyone to keep your audio on mute for a seamless experience. I will be sharing a feedback form link in the chat box, and I request everyone to kindly fill the feedback form. Now, without taking any more time, we will begin the session. आज का चर्चा का विषय है लैंग्वेज मीडिया. मैं डॉक्टर सुस्मिता बाला से निवेदन करती हूँ कि मैम आप इस विषय पर रोशनी डालें और सभी प्रतिभागियों को कुछ इसके बारे में बताएं. Thank you. Thanks, Kritika. Yes, this is language media. हम लोग लैंग्वेज मीडिया की बात करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा देश बहुभाषा भाषी देश कहलाता है, जहाँ वेरियस सब्जेक्ट में न्यूज़पेपर निकलते हैं, वेरियस भाषाओं में, लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर निकलते हैं. आकाशवाणी से बहुत सारी भाषाओं में न्यूज़ बुलेटिन और प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं. तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज मीडिया. एवरीवन एज अ फ्रेशर फील कि हमें सिर्फ 2 भाषाओं का ज्ञान ज़्यादा जरूरी है और हमें लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में अगर हम एक्सपर्ट हैं और हमारे रिक्वायरमेंट है तो हमें सिर्फ उसमें ही काम करना चाहिए. मेरे ख्याल से भाषाएं जो भी जिस प्रांत से बिलोंग करता है या फिर जिस भी डायलेक्ट्स का यूज़ करता है, तो हमें भाषाओं के साथ साथ बोलियों का भी एक्सपर्ट होना चाहिए. हमें उन दोनों ही तरफ से बहुत अपनी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. जैसे हम बात करें कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और हम जिस भी देश में जाते हैं वहाँ उन्हीं की भाषाएं बोली जाती हैं. तो हमें भी यही चाहिए कि हम अपनी जो भी भाषा है उसको स्ट्रॉन्ग करें और हिंदी और इंग्लिश को साथ में स्ट्रॉन्ग करें, तभी हमारी ग्रोथ अच्छी होगी और हम विभिन्न भाषाओं पर अपनी पकड़ मजबूती से बना सकते हैं. मैं डॉक्टर सक्सेना ने जैसे पहले भी एक एपिसोड में बात की थी मीडिया रेडियो में कि लैंग्वेजेस का यूज़ कैसे करना चाहिए, उन्होंने कुछ पॉइंट्स कम्युनिकेट किए थे. तो मैं डॉक्टर सक्सेना से भी बात करना चाहूँगी, पूछूंगी कि आप ये ज़रा इसमें रोशनी डालें, गौर से बताएं कि हम किन भाषाओं पर और ज़्यादा अच्छी तरह से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिस लैंग्वेज पे हमारा कमांड है उसमें हमें एक्सपर्ट होना चाहिए. इसके साथ ही हमें अन्य भाषाओं पर भी बहुत अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए. डॉक्टर सक्सेना, आप कुछ इस पर बात करना चाहेंगे? थैंक यू डॉक्टर सुस्मिता बाला, थैंक यू कृतिका. जिस विषय पे हम आज बात कर रहे हैं, लैंग्वेज मीडिया, बिकॉज इन अर्लियर एपिसोड वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन,
But then language is something, whichever medium we are delivering our ideas, uh, whichever medium we are making our presentation, ultimately the content become important. हम किस भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कह क्या रहे हैं. So that is how the content becomes most important. Now, another important thing is whatever good content we are trying to tell the people, but then if it is not understandable by the people to whom we are talking to whom we are transmitting our ideas, then it will not reach that target audience. So the most important thing is, if we look into from the communication process perspective, that the target audience, the target group or the focus group to which we are interacting, we have to first look into the information needs of that particular group, the aspirations, and then the language which is understood by that target group. Normally what happens, we conceive the whole communication strategy in a manner the way it suits us without looking into the needs and the aspirations of the target audience, and that is how most of the time we find that the real impact, the desired impact of our communication is not happening. तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जिस भी ग्रुप से या लोगों से, जिस भी सेगमेंट से हम बात कर रहे हैं, वो किस भाषा को समझते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है. और अगर हम भारत जैसे देश में देखें तो भारत के बारे में कहा जाता है, और ये जो डिस्टिंक्शन है ये दुनिया के बहुत कम देशों के पास है, कि जितनी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं वो दुनिया के बहुत कम देशों में बोली जाती हैं. ज्यादातर देश दुनिया के हैं, चाहे हम एशिया के देशों की बात करें या यूरोप के देशों की बात करें, ज्यादातर देश जो दुनिया के हैं वो एक ही लैंग्वेज उनमें बोली जाती है. चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, any country that we take the example, there is just one language in that country. There are few countries wherein there are more than two languages, but then as far as multi-languages is concerned, there are very less number of countries in the world, and India is the most distinct country wherein if we take into consideration the number of states that we have in India, that number of languages are there. So there are, and if we look into the constitution, whatever languages are spoken in India, all those languages have been given a place in the constitution. And over the years, जैसा कि डॉक्टर सस्मिता बाला ने कहा, बोलियों की बात की, over the years what we can see, there have been number of movements in the country, in Uttar Pradesh, in Bihar, wherein the demands are being raised to include even the bolis in the constitution. बोली से क्या मतलब है, जैसे कि अगर हम ब्रिज भाषा की बात करते हैं या अवधी की बात करते हैं या हम मैथिली की बात करते हैं या भोजपुरी की बात करते हैं, तो ये बोलियां हैं. बोलियां क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो ग्रामर है वो उस ढंग से विकसित नहीं हो पाई है जिस तरह से एक फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज की होनी चाहिए. और उतनी, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में बोले जाते हैं ये बोलियां, और इनको बोलने वाले भी लाखों की संख्या में हैं, लेकिन फिर भी इनको भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है. और इस बात पर काफी विवाद है देश में, क्या बोलियों को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए, क्या बोलियों को वही स्तर दिया जाना चाहिए जो भाषाओं को दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर तो है बोलियों में और भाषाओं में. और अगर अलग से व्याकरण नहीं है और अलग से स्क्रिप्ट नहीं है, तो फिर जो एक मेजर पॉइंट होता है एक भाषा को दूसरी भाषा से अलग करने का, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. हालांकि बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में जिनका ओरिजिन संस्कृत है, चाहे वो तमिल यहाँ हो. एक बात मैं कहना चाहूंगी डॉक्टर सक्सेना, कि जब हम बोलियों की बात करते हैं और भाषाओं के साथ जब हम बोलियों का यूज करते हैं, तो वो इंटीमेसी लेवल को काफी बढ़ाता है. जैसा भी स्क्रिप्ट राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग में अगर अपनी भाषाओं, लैंग्वेज के साथ में अगर हम कुछ वर्ड्स भी डायलेक्ट्स के यूज कर लेते हैं, तो वो इंटीमेसी लेवल को बढ़ाता है, जो मुझे लगता है कि बहुत पावरफुल है फॉर कम्युनिकेशन.
ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ भी एक इफ लगा हुआ है। हम भाषा, जैसे मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी, जी और जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं वो खड़ी बोली। अब खड़ी बोली कहाँ से आई? खड़ी बोली का जो आविर्भाव है वो हम मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ के थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस के थे, और बनारस की इटसेल्फ भाषा जो है वो खड़ी बोली नहीं थी। खड़ी नहीं बोली है। एकदम यस। नई चीज आई। बनारस की जो भाषा है उसको हम, जो ओरिजिनल भाषा है उसको हम काशिका कहते हैं, क्योंकि बनारस का पुराना पुराना नाम काशी है, तो काशिका है। और आज के संदर्भ में अगर हम बनारस को देखें तो उस पर भोजपुरी का काफी प्रभाव वहाँ की भाषा पे दिखाई पड़ता है, क्योंकि यस। जो बिहार से पूरा बनारस का बेल्ट लगा हुआ है, या इवन ईस्टर्न यूपी में अगर हम बलिया की बात करें, और अगर हम स्टेट को क्रॉस कर जाएं तो हम बक्सर की बात करें, और जितने और जिले आते हैं बिहार के, तो भोजपुरी का। लेकिन ऐसे ऐसे जगह पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली की शुरुआत की। खड़ी बोली की शुरुआत क्योंकि वो भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चूंकि बहुत सारी बोलियां हैं हिंदी में, और हर रीजन की, हर क्षेत्र की अलग बोली है, तो एक ऐसी जरूरत हमेशा से महसूस की गई, और आज भी हम महसूस करते हैं कि एक ऐसी भाषा हो जो संपर्क भाषा हो, जी बिल्कुल। जिसमें सारे लोग बात कर सके, जो सारे लोग समझ सकें। तो इसी वजह से, इसी कारण से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली की शुरुआत की, तो वो खड़ी बोली ही आज प्रचलन में है। तो जब मीडिया की बात करते हैं, भाषा की, जो मीडिया की भाषा की बात करते हैं भारत में, तो दो बातें फाइनली इससे निकल के आती हैं। एक तो वो हिंदी जिसकी स्क्रिप्ट देवनागरी है, दूसरा वो हिंदी जो खड़ी बोली में बोली जाती है, खड़ी बोली में लिखी जाती है। अब ये जो हिंदी है, इस पर बोलियों का प्रभाव रहेगा। अब अगर हिंदी का कोई अखबार आगरा से निकलता है तो उस पर निश्चित रूप से ब्रजभाषा का प्रभाव होगा। अगर कोई हिंदी का अखबार लखनऊ से निकलता है तो उस पर निश्चित रूप से अवधी का प्रभाव अवधि होगा। का अगर प्रभाव कोई रहेगा। हिंदी का यस। अखबार पटना से निकलता है तो उस पर निश्चित रूप से भोजपुरी का प्रभाव होगा, लेकिन वो बड़ा सीमित होगा। वो कुछ शब्दों तक ही, या कुछ खास जार्गन्स या एक्सप्रेशन तक ही सीमित होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनयूजुअल एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली से बहुत सारे हिंदी के अखबार निकलते हैं, जी। लेकिन दिल्ली की कोई बोली जैसी नहीं है उस तरीके से हम्म। हिंदी की, हम्म। जिस तरह से हमने ब्रजभाषा की या भोजपुरी की अवधि की बात करी। एक बात। दूसरी बात, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जितने भी हिंदी के समाचार पत्र हैं उनमें जो काम करने वाले लोग हैं, वो, उनकी जो मेजोरिटी है वो बिहार से आई हुई है। तो बिल्कुल। किसी भी अखबार में, मतलब एक रफ एस्टिमेट अगर मैं लूं, मेरे पास कोई एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स नहीं है, अगर सपोज मैं ये मानूं कि हिंदी का एक अखबार दिल्ली से निकलता है, तो अगर उसमें 100 लोग काम करते हैं, तो एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से उसमें 60 लोग बिहार के होंगे, उसमें 20 या 25 या 30 लोग यूपी के होंगे, और कुछ बाकी जो 30 लोग हैं वो मध्य प्रदेश या राजस्थान ऐसी जगहों के होंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि अखबार तो हिंदी का है, और उसमें जो शब्द हैं, जो देशज शब्द हैं, वो भोजपुरी के इस्तेमाल होते डायलेक्ट्स। हैं, क्योंकि बिहार के लोग ज्यादा काम करते हैं। तो जी। अब ये बड़ी अजीब स्थिति है कि दिल्ली से हिंदी का अखबार निकल रहा है, लेकिन उसमें वो सारे शब्द हैं जो पटना से हिंदी में निकलने वाले किसी अखबार में होंगे। तो ये जो क्रॉस कल्चरल थिंग है, क्रॉस कल्चरल करेंट्स हैं हमारे देश में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं जब हम भाषाई पत्रकारिता की बात करते हैं। यहाँ एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब हम लैंग्वेज मीडिया की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह में भी अगर आपने देखा होगा कि उसमें भी काफी हिंदी के एंड अदर लैंग्वेजेस के वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और हम उसको आराम से इजीली यूज करते हैं, और उसमें कभी किसी को ये फील भी नहीं होता है कि ये किसी और भाषा का शब्द हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो जी। मैं एक बात ये कहना चाह रही थी कि हम बात करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की, तो वहाँ पूरी जगह आप देखिए कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी भाषाओं का यूज किया जाता है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम आफ्टर सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, व्हाट आर वेरियस एस्पेक्ट फॉर लैंग्वेज मीडिया,
हम किन किन वर्ड्स का, किन चीज़ों को याद रखें, ध्यान रखें कि सिलेक्शन के बाद भी हमें प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे उन फील्ड में काम कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। तो ये भी एक चीज है जिसमें आप कुछ अपनी बात पॉइंट्स रख जी जी। सकते हैं। जहाँ तक जो 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 विषय आपने उठाया, अब हिंदी क्या है, हिंदी में भी बहुत सारे रूप हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। ऐसा नहीं है कि आज जिस तरह की हिंदी हम देख रहे हैं, एक समय था जब आज अखबार की बनारस से शुरुआत हुई और शिव प्रसाद गुप्त जी इंग्लैंड से लौटे और वो टाइम से प्रभावित थे। उन्होंने कहा इसी तरह का एक अखबार भारत में भी निकलना चाहिए और उन्होंने आज अखबार की शुरुआत की। और अगर हम भाषा और पत्रकारिता और मीडिया के संबंध को जोड़ने की बात करें, तो उन्होंने एक ऐसे पत्रकार की खोज की जो इस दिशा में अच्छा काम कर सकता था। तो वो बाबूराव विष्णु पराड़कर जी को कलकत्ता से लेके आए और उनसे अनुरोध किया कि वो आज अखबार के संपादक हो जाए। जी। नाउ आज अखबार को इस बात का श्रेय जाता है 1920s और 1930s के दशक में कि जितने शब्द उसने हिंदी पत्रकारिता को दिए। हिंदी पत्रकारिता जब शुरुआत हुई, जैसे मैंने खड़ी बोली की बात की थी, शब्दों की समस्या थी, शब्द नहीं थे। पत्रकारिता में शब्द नहीं थे। साहित्य में तो शब्द ठीक है, साहित्यकार नए नए शब्दों को ले आते हैं, बट देन पत्रकारिता में बहुत बड़ी समस्या थी। इस कमी को आज अखबार ने पूरा किया। तो मीडिया का रोल यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मीडिया ने हिंदी भाषा को बहुत ही समृद्ध किया, नए शब्द लेके आए। जैसे जो इंस्टेंट एक दो उदाहरण मेरे दिमाग में आते हैं, मैं बता सकता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए प्रेसिडेंट के लिए कोई शब्द नहीं था, राष्ट्रपति, तो उसके लिए राष्ट्रपति शब्द को लेके आए। जी। तो इस तरह के शब्दों के साथ बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया और ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल एवोल्यूशन की स्टेज पे, बहुत ही एलिमेंट्री स्टेज पे आज अखबार और बाबूराव विष्णु पराड़कर जी ने किया। उसके बाद भी ऐसा नहीं ये खत्म हो गया। हिंदी पत्रकारिता में जब हम शब्दों की बात करते हैं, बोलियों की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की बात करते हैं, दो और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। एक हम एग्जाम्पल लें राजेंद्र माथुर का। उन्होंने जब नवभारत टाइम्स के संपादक हुए, तो उन्होंने जिस तरह से हिंदी भाषा को और पत्रकारिता की हिंदी भाषा को जिस तरह से समृद्ध करने की कोशिश की, वो बिल्कुल असाधारण है और उनको काफी श्रेय जाता है हिंदी पत्रकारिता की भाषा को विकसित करने का। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण उदाहरण मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, वो है जनसत्ता अखबार का। जब 1980s में जनसत्ता समाचार पत्र शुरू हुआ और उसके संपादक बने जोशी जी, प्रभाष जोशी। प्रभाष जोशी जी। तो प्रभाष जोशी ने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि बहुत सारे उसके विरोधी भी हैं कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या नफा नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने किया और वो कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन है जो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनसत्ता की जो भाषा होगी वो बोलचाल की भाषा होगी, बोलचाल की हिंदी होगी। तो वो हिंदी को जो एक एक क्लास की, हालांकि क्लास की लैंग्वेज तो हिंदी कभी थी नहीं, वो जो फिर भी जो क्लास था उससे वो आम लोगों तक हिंदी को ले आए। और उन्होंने किस तरह की हिंदी का इस्तेमाल किया, अगर आप लोग जो जिसका भी इंटरेस्ट होगा, आप आर्काइव्स में जाके, पुस्तकालय में जाके अगर आपको मिले जनसत्ता के शुरुआत के अंक, या अभी भी देखें, हालांकि अब वो जनसत्ता नहीं है जो 1980 का जनसत्ता था, स्टिल वो कहीं ना कहीं वो भाषा का जो पुट है, जो जो एक फ्लेवर है, वो आज के जनसत्ता में भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाता है। तो चूंकि प्रभाष जोशी मध्य प्रदेश से थे और उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की, वो बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश की का असर आ गया, बहुत ज्यादा उसमें महाराष्ट्र का असर आ गया। तो जो मैंने अलग अलग प्रांतों की बात की कि बिहार का असर आया या यूपी का असर आया, यहाँ पे मध्य प्रदेश का असर आ गया, महाराष्ट्र का असर आ गया। जैसे कि आपने देखा होगा बॉम्बे में बहुत कॉमनली यूज करते हैं, चलो अपन ऐसा काम करते हैं। तो जो अपन का शब्द था वो जनसत्ता ने शुरू कर दिया, जो प्रयोग था वो जनसत्ता ने शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो नॉर्थ इंडिया में भी वो प्रचलन में आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे, ये 3 एक्सपेरिमेंट्स की मैंने बात की हिंदी भाषा की पत्रकारिता के बारे में। एक चौथा एक्सपेरिमेंट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो भी मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इतिहास की इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मेरे ख्याल में हमारी पीढ़ी में जिन लोगों ने काम किया है सिर्फ उन्हीं को पता हो सकती है, नई पीढ़ी को नहीं पता। लेकिन ये भाषा के विकास की दृष्टि
से बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या किया, चूंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो मैनेजमेंट था वो हमेशा से ही अंग्रेजी परस्त था। अंग्रेज इंग्लिश में काम करना एक बात है और अंग्रेजी परस्त होना एकदम दूसरी बात है। तो चूंकि उनका टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार था जो बहुत अच्छा निकलता था, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों बेकार के अपने एफर्ट्स करते हैं नवभारत टाइम्स में। हमारी सारी रिपोर्टिंग जो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर्स करते हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोरीज एडिट होती हैं, हम कुछ ट्रांसलेटर्स रख देते हैं, सारा ट्रांसलेट हो जाएगा। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदी में निकालना शुरू कर दिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदी में था, जहां पर टा, आका, डंडा, ई, इस तरह से उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदी में लिखा और टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदी में निकालना शुरू किया, जो पूरी तरह से अनुवादित था। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट चला नहीं, इसका विरोध भी बहुत हुआ, क्योंकि विरोध होना लाजमी था। जो भी हिंदी से लगाव रखते हैं, हिंदी को प्यार करते हैं, उन्होंने कहा कि हिंदी को आप इस तरह से दोयम दर्जे की भाषा नहीं बना सकते जहां पर पूरी तरह से ट्रांसलेटेड भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहीं पर नवभारत टाइम्स से जुड़ा हुआ एक और उदाहरण मैं रखना चाहूंगा, और जो अभी भी है। अगर आज के समय में कोई नवभारत टाइम्स पढ़ता है और उसने कभी ध्यान नहीं दिया है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज के बाद से आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। नवभारत हिंदी टाइम्स और ने इंग्लिश मिक्स भाषा का हाँ, तो यूज करते उन्होंने हैं। हिंदी और अंग्रेजी मिक्स कर दिया। जी, समाचार पत्र हिंदी का है, लेकिन वो बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के हू बहू इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो वो राष्ट्रपति नहीं लिखेंगे, प्रेसिडेंट लिख देंगे। वो संसद नहीं लिखेंगे, पार्लियामेंट लिख देंगे। और पार्लियामेंट आज आज भी ऐसा करते हैं, आज भी ऐसा करते हैं। तो वो हिंदी पत्रकारिता की आज भी एक नई धारा है। तो हिंदी पत्रकारिता की एक बहुत तरह की धाराएं हैं। और जब हम लैंग्वेज मीडिया की बात करते हैं, ऑब्वियसली हमारा हिंदी पर ही हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, और चूंकि हम हिंदी भाषी प्रांत में हैं, और जितने हमारे सेशन में भी लोग होंगे या जितना, क्योंकि हिंदी का दायरा बहुत बड़ा है, चाहे हम राजस्थान कहें, छत्तीसगढ़ कहें, मध्य प्रदेश कहें, बिहार कहें, झारखंड कहें, राजस्थान, सारा बहुत बड़ा एरिया कवर करता है हिंदी। हालांकि हिंदी के साथ साथ और भी भाषाएं काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगी डॉक्टर सस्मिता बाला? जी, इसमें इसके अलावा मेरा ये भी था कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, वो उनका इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश मीडिया ऑन द गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड मोर देन लैंग्वेज मीडिया। तो इसमें क्या ऐसा होना चाहिए, जैसे हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं जब सितंबर में हिंदी दिवस के आसपास पखवाड़ा मनाते हैं कि हमें हिंदी में काम करना चाहिए, या तो क्या केवल हिंदी में काम करने की बात करते हैं? हम लैंग्वेज मीडिया की बात करते हैं, हम प्रेस रिलीजेस इंग्लिश में ही भेजते हैं, हिंदी के न्यूज़पेपर में ऑब्वियसली ट्रांसलेशन करना पड़ता है, लेकिन क्या हम डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज गवर्नमेंट के वर्किंग में नहीं कर सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से जो फ्रेशर्स हैं या जो लोग भी यहाँ पे इस मीटिंग में गैदर हुए हैं, उनको भी ये क्वेश्चन होगा उनके लिए कि क्या गवर्नमेंट इस तरह की कोई चीज अप्लाई कर सकती है या कंसीडर कर सकती है जिसमें हम अदर लैंग्वेजेस का भी यूज करें। देखिए, जब हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, मीडिया की बात कर रहे हैं, तो मैं तो गवर्नमेंट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। गवर्नमेंट का रोल है, वो अपनी जगह है, लेकिन भाषाएं और भाषाओं का विकास और पत्रकारिता, ये सारी चीजें कभी भी सरकार पर आश्रित नहीं। और पूरे 70 साल हम देखें, भारत में पत्रकारिता इंडिपेंडेंट ढंग से विकसित हुई है, सरकार का उसमें कोई मेजर योगदान नहीं है। और क्यों इस तरह से विकसित हुई है? क्योंकि लोग वो भाषा बोलते हैं। देखिए, आज हम मार्केट की भाषा, यहाँ पे सरकार से ज्यादा मार्केट इंपॉर्टेंट है। मार्केट उसी भाषा में को आगे ले जाता है जिसमें जो लोग समझते हैं। अब किसी को सामान को बेचना है यूपी में, तो अंग्रेजी में नहीं बेचेगा, हिंदी में ही बेचेगा। अगर 90% लोग हिंदी भाषा समझते हैं, तो अखबार हिंदी में ही निकलेगा। तो जो मार्केट ही तय करता है, तो इनफैक्ट मार्केट ने ही हिंदी भाषा को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि वही लोग समझते हैं और उन्हीं लोगों के पास खरीदारी की क्षमता है। तो जिन लोगों को आप सामान बेचना चाहता है कॉर्पोरेट सेक्टर, उन लोगों की भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। तो एक तो ये कारण। दूसरा, हिंदी के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जिसने किया है, वो है सिनेमा, फिल्में।
फिल्मों में सरकार ने नहीं बताया कि हिंदी में फिल्म बनाओ कि अंग्रेजी में बनाओ कि तमिल में बनाओ कि तेलुगु में, लेकिन क्योंकि इस देश का बहुसंख्यक हिंदी बोलता है, समझता है, इस वजह से सिनेमा भी हिंदी में बना और उसने हिंदी का विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। शुरुआत में प्रिंट मीडिया ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया, नो डाउट। उसके बाद लगाम जो थी वो सिनेमा ने थाम ली। सिनेमा तो ने। इस तरह से जो भाषा का विकास है वो बड़ा अलग अलग तरीके से हुआ है, उसका कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है। उसके लिए हम सरकार को या किसी को क्रेडिट बिल्कुल नहीं दे सकते। समय के साथ साथ एक्सपेरिमेंट होते गए, उन एक्सपेरिमेंट से चीजें आगे बढ़ती गई, जो चीजें लोगों को पसंद आई वो आगे बढ़ी, जो चीजें मार्केट को लगा कि उन चीजों को यूज करके वो लोगों तक अपनी पैठ बना सकता है, अपना सामान बेच सकता है, अपनी सर्विसेज बेच सकता है, वो आगे आई। इसीलिए लैंग्वेज का मीडिया बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं अब हिंदी के साथ भारतीय भाषाओं की बात भी करना चाहूंगा। और जब भारतीय भाषाओं की बात होती है तो सबसे पहले मैं उदाहरण देना चाहूंगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने आज से 100 साल से भी अधिक, 110 साल पहले, बल्कि मैं कहूँ 100 साल पहले ही लीजिए, मैं साउथ अफ्रीका का कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं ले रहा, बट भारत का भी एग्जाम्पल ले तो 100 साल हो गए गांधी जी को जब से उन्होंने भारत में काम करना शुरू किया। और गांधी जी ने भारत में आते ही 1 साल भारत भ्रमण में लगाया। उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि भारत में अगर लोगों तक हमें अपनी बात को पहुंचाना है तो हमें लोगों की भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। उन्होंने ये तय किया कि पत्रकारिता एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जिसके सहारे लोगों तक पहुंचा जा सकता है। और उन्होंने तरह तरह के समाचार पत्र निकाले और वो सारे समाचार पत्र उन्होंने इंग्लिश में तो निकाले, भारतीय भाषाओं में भी भाषा। निकाले। और जब हम भारतीय भाषा की बात करते हैं और महात्मा गांधी की बात करते हैं तो उन्होंने किन किन भाषाओं में समाचार पत्र निकाले? उन्होंने गुजराती में निकाला, तमिल, मराठी में तेलुगु, निकाला, कन्नड़। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सारी भाषाओं में अखबार निकाले। तो आप सोचिए कि भारतीय भाषाओं की जो अहमियत है वो 100 साल पहले गांधी जी ने समझ ली थी। हमको समझने में दिक्कत आई इंडिपेंडेंस के बाद, और लेकिन पिछले 15-20 साल में भारत में भी लोगों ने समझ लिया। और लोगों से पहले जो कारपोरेट जगत है, जो अखबारों के मालिक हैं, जो चैनल्स के मालिक हैं और जो कारपोरेट हाउसेस के ओनर्स हैं, उन्होंने 1990 के बाद इस बात को समझ लिया। उसी की वजह से आज आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कई भाषाओं में अपने, अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, चाहे हम लोकमत टाइम्स की बात करें, अगर हम दिल्ली से बाहर की बात करें, दिल्ली में बात करें तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, तो एक से ज्यादा भाषाओं में पब्लिकेशंस निकालते हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है। जैसे हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश में है, जनसत्ता हिंदी में है, लोक सत्ता मराठी में है। मराठी में। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं में निकाले। लेकिन उससे भी बड़ा एक्सपेरिमेंट हिंदी के न्यूज चैनल्स ने किया है पिछले 20 सालों में। और आज हम देखते हैं कि हम चाहे जो जो हैदराबाद का ग्रुप है, इसकी बात करें, जो उर्दू में चैनल चलाते हैं, जो हिंदी में चैनल चलाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट प्रांतों के लिए। आपने न्यूज़ देखा 18 होगा हैदराबाद से जो है वो उर्दू में। ईटीवी ईटीवी ईटीवी, ईटीवी यस। ईटीवी और न्यूज 18 ग्रुप, ये दोनों ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटीवी काफी पुराना ग्रुप है, ये हैदराबाद से रामोजी राव ने शुरू किया। और ये मल्टी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म ही था। उसके बाद जब ईटीवी थोड़ा वीक हुआ और उसने अपने काफी एसेट्स बेच दिए न्यूज 18 ग्रुप को या टीवी 18 ग्रुप को, विच इज ओन्ड बाय अंबानीज ना, वो सारे चैनल्स भी बहुत सारे उन्होंने ले लिए और वो सारे कई कई लैंग्वेजेस में अपना प्रसारण करते हैं। तो एक तो भाषा के स्तर पर प्रसारण अलग अलग होने लगा, इसके अलावा प्रांतों के स्तर पर होने लगा। आप ईटीवी देखिए, ईटीवी उत्तराखंड अलग है, ईटीवी यूपी अलग है, ईटीवी बिहार अलग है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रांत में एक ही भाषा बोली जाती हो, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो एक प्रांत एक भाषा पर चलते हैं। क्योंकि हिंदी बहुत इन सारी स्टेट्स में बोली जाती है, लेकिन तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सिर्फ एक भाषा नहीं चलती। तमिलनाडु का एग्जाम्पल लें तो बहुसंख्यक तमिल है,
लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कर्नाटक का एग्जाम्पल लें तो वहां हमें मिक्स मिलता है। स्टेट लैंग्वेज भले ही कन्नड़ है, लेकिन वहाँ कन्नड़ बोलने वाले बहुसंख्यक तो हैं, लेकिन उसके मुकाबले मराठी बोलने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं, कोंकणी बोलने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं, और मलयाली बोलने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन भी हमें मिलता है। तो और एक स्टेट में कई लैंग्वेज के समाचार पत्र हमें दिखाई देते हैं। तो हमें अपना देश हमारा जिस तरह का है, बहुआयामी, बहुभाषी और विविध देश है, उसमें निश्चित रूप से लैंग्वेज मीडिया का ही फ्यूचर है अंग्रेजी के मुकाबले। यहाँ पे एक जैसे आपने न्यूज़पेपर की बात की, चैनल्स की बात की, वहाँ मैं यहाँ रेडियो की बात करना चाह रही हूँ, जहाँ 92 भाषाओं में, 92 लैंग्वेजेस में बुलेटिन्स भी निकाले जाते हैं और प्रोग्राम भी ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। और अभी कल ही आ रहा था रेडियो पर कि एक प्रोग्राम है जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सभी भाषाओं में ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो इसमें 92 लैंग्वेजेस के साथ साथ बहुत सारी डायलेक्ट्स का भी यूज हो रहा है, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स बना रहे हैं एंड ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज मीडिया अपनी तरह से न्यूज़पेपर के फॉर्म में, रेडियो के फॉर्म में या डिफरेंट चैनल्स के फॉर्म में लोगों तक पहुंच रहा है। तो लैंग्वेज मीडिया में हम बहुत कुछ कर सकते हैं यदि हम करना चाहें और अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें। और इस पॉइंट पे एक बात और आती है कि हम जब डायलेक्ट्स की बात करते हैं तो डायलेक्ट्स में भी उतने ही हार्ड वर्क की जरूरत है जितना कि हम सिर्फ लैंग्वेज की पॉलिशिंग में लगाते हैं। लैंग्वेज की पॉलिशिंग हम कर लेते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, ऐसे सेलेक्ट करना वर्ड के जो स्मूथली लोगों तक पहुंच जाए, अंडरस्टैंडेबल हो। तो वैसे ही हमें डायलेक्ट्स के साथ में उनमें कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज करके उनको इंटरेस्टिंग बनाने के एफर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो या न्यूज चैनल्स हो, सभी जगह हमें इन सारी चीजों की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, तभी हम कुछ आगे अच्छी तरह से कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग को लेके आपने थोड़ी सी बात की थी, बट यहाँ पे एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी कि एडवर्टाइजिंग में इंग्लिश लैंग्वेज पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, हिंदी में कम दी जाती है। तो इसमें भी कुछ एफर्ट्स होने चाहिए, जो इसके बारे में अगर आप कुछ रोशनी डालें तो। चलिए, ये एडवर्टाइजिंग के बारे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एडवर्टाइजिंग का सीधा संबंध जो मैंने पहले कहा, पहले मैं उसको दोहराता हूँ, फिर उससे जो डिपार्चर है वो बताता हूँ। एडवर्टाइजिंग की भाषा, ऑब्वियसली हिंदी का अखबार है तो हिंदी में विज्ञापन होगा, हिंदी भाषा का अखबार है तो वो हिंदी भाषी लोगों के बीच में ही जाएगा, वही लोग पढ़ेंगे, तो उसमें उन्हीं चीजों के विज्ञापन होंगे जिनको उसके पढ़ने वाले। देखिए विज्ञापन कैसे चलता है, ये एडवर्टाइजर अपने विज्ञापन का चुनाव कैसे करता है, अगर विज्ञापन के मीडियम का, एडवर्टाइजिंग मीडियम का चुनाव कैसे करता है, वो इस आधार पे करता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो किन क्षेत्रों में बिकेगा, किन क्षेत्रों में बिकेगा, ये किस आधार पे तय होता है। एक तो यूटिलिटी वाला एस्पेक्ट है, उपयोगिता वाला एस्पेक्ट है, और दूसरा अफोर्डेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है। तो इसी के आधार पर जो एडवर्टाइजर है वो अपने एडवर्टाइजिंग मीडियम का चुनाव करता है। अब क्या है कि तमाम इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो महंगे होते हैं और जिनको जो अपर स्ट्रेटा है वो खरीदता है, समाज का मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग उस सामान को खरीदता है। इस वर्ग की भाषा मोर और लेस इंग्लिश, इंग्लिश भाषा इंग्लिश नहीं है, भाषा मदर टंग कुछ भी हो सकती है, बट देन ये इस वर्ग के लोग अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल है, उनकी शिक्षा इंग्लिश में होती है, उनका कामकाज इंग्लिश में है। तो वो जो सेगमेंट है हमारा सोसाइटी का, उस वर्ग तक अगर कोई सामान बेचना है तो ऑब्वियसली जितना आपको महंगे सामान के विज्ञापन मिलेंगे वो आपको अंग्रेजी अखबारों में मिलेंगे। तो ये जो विज्ञापन दाता है और जो अपने एडवर्टाइजिंग मीडियम का चुनाव करता है, ये इस आधार पर अपने विज्ञापन को तय करता है कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। वो देखता है कि वो ऐसा अखबार चुने जिसके पाठकों के पास वो परचेजिंग पावर हो जो उनका सामान खरीद सकते हो। इसी तरह से जब वो चैनल का चुनाव करेंगे तो वो
चैनल देखेंगे जिसको ऐसे लोग उस चैनल को देखते हो जिनकी पॉकेट में उतना पैसा हो जो वो उनका प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो जो परचेजिंग पावर ऑफ द रीडर्स, परचेजिंग पावर ऑफ द व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसीलिए हिंदी के अखबार ज्यादा बिकते हैं, ज्यादा पढ़े जाते हैं, लेकिन उनके पास विज्ञापन वॉल्यूम में तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बड़े प्रोडक्ट के विज्ञापन नहीं होते, और उनका जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो अंग्रेजी के अखबार से कम होता है। एक अंग्रेजी का अखबार 100 लोग पढ़ते हो और उसके मुकाबले एक हिंदी का अखबार 1000 लोग पढ़ते हो, लेकिन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू अंग्रेजी अखबार का ज्यादा होता है। तो ये जो ये पूरी तरह से मार्केट ड्रिवन है, ये पूरी तरह से मार्केट ड्रिवन है। और कुछ हद तक we have to accept this kind of trend because एडवर्टाइजर वहीं पैसा लगाएगा जहां पर उसका सामान बिकेगा, और यहाँ पर अंग्रेजी का कहीं ना कहीं एज हमें दिखाई दे। जी हाँ। जी, आप और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं बस लैंग्वेज से रिलेटेड सिर्फ यही और कहना चाहूँगी कि लैंग्वेज के लिए जैसे हमने अभी शुरू से लेके अभी तक बात की कि भाषा की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस प्रांत से, जिस जगह से आप आ रहे हैं वो कम से कम आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस पे आपको कमांड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भाषा पे जितनी पकड़ आपकी होगी, और लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। राइटिंग स्किल्स स्ट्रांग होंगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि राइटिंग स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन एंड अदरवाइज। बिकॉज हमें डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम, जैसा कि डॉक्टर सक्सेना ने भी बोला कि फिल्म इंडस्ट्री में आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिल्म बना रहे हैं। तो जब डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिल्म बना रहे हैं तो आप, जैसा कि मैं देखती हूँ कॉलेज में भी, अगर मैंने किसी के लिए बोला हिंदी में कुछ लिखने को, तो वो हिंदी में तो लिख रहे हैं लेकिन वो इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, हम के लिए HUM का यूज कर रहे हैं। तो आपके लिए हो सकता है वो कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर आपकी स्क्रिप्ट जो जिसने आपको असाइन किया है वो देखना चाहेगा तो वो उसके लिए ठीक नहीं होगी। और मोस्ट प्रोबेबली जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उस जगह भी आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हमें जो भी लैंग्वेज हम सेलेक्ट करें, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट। आफ्टर सिलेक्शन फिर उसमें हमको काम कैसे करना है ये इम्पॉर्टेंट है। और हमें हर तरह की चीजें, छोटे छोटे स्क्रिप्ट राइटिंग करना, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना, उसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड्स रखना, और ग्रेजुअली उसको ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर सुष्मिता बाला ने कहा, मैं उस बात से पूरी तरह से एग्रीमेंट में हूँ। देखिए, जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, खास तौर पे चूंकि हमारी ऑडियंस में जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के अलावा प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स भी हैं जो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने का इरादा बना रहे हैं, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो 2 भाषाएं सबके पास होनी चाहिए। भारतीय भाषा, विदेशी भाषाएं हो नथिंग। देखिए, भाषाएं तो आप जितनी जान लेंगे उतना अच्छा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली हमको वो मौके उपलब्ध नहीं कराता। हालांकि त्रिगुण सेन से लेकर आज तक बार बार हम बात करते हैं कि 3 भाषाएं होनी चाहिए, त्रिभाषा फार्मूला आया, वो ठीक से लागू नहीं हो पाया स्कूलों में। अभी भी बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लैंग्वेजेस पर बल देना चाहिए भारतीय भाषाओं पे, वो नहीं है। तो भारतीय भाषाओं के संदर्भ में ही अगर मैं बात करूं तो चलिए 3 नहीं 2 भाषाएं जरूरी हैं। हिंदी, अगर आप हिंदी मतलब अगर आप की मदर टंग, हिंदी में नहीं कहूंगा बल्कि मदर टंग, और आपकी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी, आपकी मदर टंग तमिल है तो तमिल, वो एक भाषा आपकी होनी चाहिए। और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा हम सबके लिए बहुत ही कन्वीनियंट भाषा इंग्लिश ही है, नो डाउट। आप स्पेनिश भी सीख
सीख सकते हैं, आप फ्रेंच भी सीख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट देन आप इंटरनेशनली आधी दुनिया में आप अंग्रेजी के सारे काम चला सकते हैं। तो आपको अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग के अलावा एक इंग्लिश होनी चाहिए। बल्कि जो मैं अभी तीन भाषाओं की बात कर रहा था, जो पूरा सोच थी कि इंडिया को इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि अब आज 2020 में हमें उस तरह की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, लेकिन 1970 और 80 में देश में बहुत बड़ी समस्या थी भाषा को लेके और देश के इंटीग्रेशन को लेके, देश के एकीकरण को लेके, क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में हिंदी का बहुत ज्यादा विरोध था। तो अब उस तरह की स्थिति नहीं है, हिंदी बहुत विकसित हो गई है, हिंदी को बहुत एक्सेप्टेंस भी मिल गई है, साउथ में भी बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस मिल गई है, तो उस तरह की समस्याएं नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि देश को थोड़ा इंटीग्रेशन को हम और अच्छे आगे ले जाएं, तो इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के अलावा एक भारतीय भाषा और सीखनी चाहिए। मसलन अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप बांग्ला सीख लीजिए, या आप मराठी सीख लीजिए, गुजराती, एक भाषा और हो। अगर ऐसा हो जाए तो ऑब्वियसली देश के लिए भी बहुत अच्छा है, पत्रकारिता के लिए भी बहुत अच्छा है। पत्रकारिता के लिए कैसे अच्छा है, मैं पत्रकारिता से रिलेटेड ही कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। पहले हिंदी अंग्रेजी को दूंगा, फिर बाकी भारतीय भाषाओं के संदर्भ में दूंगा। सपोज आप एक हिंदी अखबार में काम करते हैं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी, और आप एक सब एडिटर से होते होते आप एक ब्यूरो चीफ तक आ गए, न्यूज एडिटर तक आ गए, असिस्टेंट एडिटर तक आ गए। अब आपके पास वो सारे मौके हैं जो आपको तमाम इस तरह के रिपोर्टिंग के अवसर मिल सकते हैं, जो सामान्यतः नीचे के लेवल पे पत्रकारों को नहीं मिलते। सपोज आपको डोनाल्ड ट्रंप आए और आपको उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया, यस, तो आप हैं तो संपादक हिंदी अखबार के, आपकी भाषा भी बहुत अच्छी है, आपकी समझ भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में कन्वर्सेंट नहीं है तो आप वो मौका गंवा देंगे। आपसे कोई जूनियर जिसको अंग्रेजी अच्छी आती होगी वो चला जाएगा उसको इंटरव्यू लेने के लिए। तो पत्रकारिता में आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो भारतीय भाषाओं में काम करते हुए आप एक सर्टेन लेवल के बाद आके आपका रास्ता थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, थोड़ा अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए अगर आप हिंदी में काम करना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी भी सीख लीजिए। ठीक है, दिस इज वन। तो जो लोग भी आगे पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहते हैं उनको इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं अंग्रेजी के, और सपोज आपको कैलकाटा से अंग्रेजी का एक नया अखबार निकला, वो आपको एज एडिटर लेना चाहता है तो ले लेगा, आप अच्छे हैं और वो लेना भी चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको बांग्ला का एबीसीडी भी समझ में नहीं आता तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और ये सिर्फ संपादक के लेवल पे नहीं, संपादक के लेवल पे एक दफा को आपको ले भी लिया जाएगा, क्योंकि आप टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, आपको पॉलिसी बनानी है, आपको एग्जीक्यूट करना है। बट देन अगर आप एक रिपोर्टर हैं और आपको अंग्रेजी तो आती है, लेकिन जहां आपको गुजरात में पोस्टिंग मिल गया, टाइम्स ऑफ इंडिया है सपोज, तो आपको ट्रांसफरेबल है, आपको गुजरात मिल गया, महाराष्ट्र मिल गया, आपको बंगाल मिल गया, चलो यहाँ फिर भी गनीमत है, आपको तमिलनाडु मिल गया। अब आप क्या करेंगे? आप रिपोर्टिंग तो कर लेंगे, नो डाउट, लेकिन क्या है, बहुत सारी ऐसी खबरें जो आपको मिल सकती हैं उनसे आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक तो आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए भाषाओं के दृष्टि से हर एक जो आदमी, हर एक वो व्यक्ति जो मीडिया की पढ़ाई आज करने के बारे में फैसला कर रहा है, कल को पत्रकारिता में जाना चाहता है, उसको अपनी भाषाओं को समृद्ध करना चाहिए। एक अपनी मदर टंग के अलावा एक भारतीय भाषा सीखनी चाहिए, एक विदेशी भाषा सीखनी चाहिए, और इसके अलावा अपनी भाषा में भी आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास अपनी भाषा है, मदर टंग है, डज नॉट मीन, जो डॉक्टर बाला ने भी कहा, कि आप उसमें अच्छा काम कर लेते हैं। हम लोगों ने तो 90% हिंदी भाषी लोगों को देखा है जो हिंदी लिख ही नहीं पाते। तो आपको, यू शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आपको हिंदी अच्छी आती होगी। आपको हिंदी लिखना, अच्छी हिंदी लिखना, अच्छी हिंदी बोलना आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, और ये सभी लैंग्वेजेस पे अप्लाई करता है। जब हम कहते हैं कि लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, उसका क्या अर्थ है? पहली चीज, आपको उस भाषा की व्याकरण आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। और जैसे आप अंग्रेजी में बहुत सारे लोगों को जो हैंडीकैप है उनको भी मैं यही कहता हूँ, आप पहले टेंसेस समझ लीजिए। तो आपको अगर टेंसेस का ज्ञान हो गया तो आपकी आधी बैटल आपने जीत ली। उसके बाद आपके पास शब्द होने चाहिए,
जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में वोकेबलरी होनी चाहिए, आपका शब्द भंडार होना चाहिए, तो आपके पास शब्द होने चाहिए। यही दो जगह फंसते हैं ज्यादातर लोग, वो टेंस गलत यूज करते हैं और उनको जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उनको बहुत उपयुक्त शब्द नहीं मिलता अपनी अभिव्यक्ति के। तो आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। तो जो लोग भी लैंग्वेज मीडिया में काम करना चाहते हैं और भविष्य में उन्हें करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ क्योंकि अंग्रेजी का मीडिया इस देश में नहीं के बराबर है। इस देश में मैं एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स इमीडिएटली नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से इस देश की अगर पूरी पत्रकारिता आप जोड़ लें, सारे न्यूज़पेपर, सारे टेलीविजन चैनल्स, तो 100 में से सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी का मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो भविष्य जो है वो हिंदी या भारतीय भाषाओं में भी है। और इसके मैं आपको बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम डीयू की एग्जाम्पल लें, डीयू में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। इवन आईपी यूनिवर्सिटी में भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, हालांकि हिंदी में बाद के सालों में परमिशन दी गई है, पहले वो भी नहीं थी। ये बड़ा स्ट्रेंज है कि भारत में दिल्ली में रहते हुए भी आपको सिर्फ अंग्रेजी का मतलब ऑप्शन नहीं है। एनीवे, फिर आईपी यूनिवर्सिटी ने बाद में वो ऑप्शन दिया। डीयू में आज भी नहीं है, जो बीए ऑनर्स जर्नलिज्म का कोर्स है उसमें ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू हैव instruction in English and you have to write your answers in English only. And since I have been teaching for very long in the colleges of Delhi University, and I've discovered, for instance, अगर मैं जैसे एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल लूँ कि जितने भी जो वहाँ से स्टूडेंट्स निकलते थे जो हिंदी इनकी अच्छी नहीं थी और जिन्होंने हमेशा अंग्रेजी में पढ़ाई की लेकिन जॉब्स हिंदी में मिले, उन्होंने जॉब्स हिंदी में लिए और मेहनत की और अपने को हिंदी में डेवलप भी कर लिया। एक अखबार एक न्यूज चैनल दिल्ली से शुरू हुआ था, चैनल 7, जो अब होते होते बदलते नाम बदलते और प्रोप्राइटर बदलते बदलते अब टीवी न्यूज 18 हो गया। ठीक है, तो कई बार नाम और उसका बदला, तो वो हिंदी का चैनल शुरू हुआ था, चैनल 7। उस समय वो जागरण ग्रुप का चैनल था। तो उसका जो संपादक थे वो मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप अपने स्टूडेंट्स को भेज दीजिए। मैंने कमला नेहरू कॉलेज के करीब 7-8 स्टूडेंट्स को भेज दिया और इंटरेस्टिंगली उन्होंने सबको रख लिया और सबने बहुत अच्छा काम भी किया। और उन्होंने हमेशा पढ़ाई इंग्लिश में की थी, हिंदी उनको आती नहीं थी। हिंदी उन्होंने अपने से कर ली, चूंकि मातृभाषा सबकी, ज्यादातर की हिंदी, सबकी तो नहीं, ज्यादातर की हिंदी थी, उसमें नॉन हिंदी भाषी लोग भी थे। तो यहाँ पे मैं जो लोग हिंदी लैंग्वेज मीडिया में काम करना चाहते हैं या हिंदी में करना चाहते हैं उनको मैं कॉशन करना चाहता हूँ कि देखिए आपके पास बहुत अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं। अगर आप भारतीय भाषाओं में और हिंदी में काम करना चाहते हैं, अंग्रेजी वाले भी आपका रास्ता रोक के खड़े होंगे। पढ़ाई उन्होंने इंग्लिश में की है, जॉब हिंदी में ले लेंगे। आपने हिंदी में पढ़ाई की है, आप हिंदी में ही जॉब मिलेगा, आप इंग्लिश में जॉब नहीं ले पाएंगे। तो मतलब आपके सामने चुनौतियां हैं। और ये अगर जो जिस तरह की चीजें मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से, ये सारी चीजें अगर आपके बैक ऑफ माइंड हैं तो आपको सतर्क रहेंगे, आप करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो कोशिश ये करेंगे कि आप की भाषा एक ही ना रहे, आप अपने को डाइवर्सिफाई करें, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को सीखें, उनमें पारंगत करें, और जो आपकी भाषा सबसे अच्छी हो, जिसमें आपका कंफर्ट लेवल सबसे ज्यादा हो, जिसमें कमांड सबसे ज्यादा हो, उसको आप अपने प्रोफेशन की भाषा बनाएं। तभी आप भी आगे जा सकते हैं और तभी भाषाई पत्रकारिता भी आगे जा सकती है। डॉक्टर सर बाला, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? कृतिका जी हाँ, कुछ, हाँ। कृतिका, हाँ बोलो। सर यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने जो बातें बताई, मुझे विश्वास है कि सबको काफ़ी सीखने को मिला और बहुत अच्छी टिप्स मीडिया एस्पिरेंट्स को यहाँ पे मिली। तो अब हम जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स राउंड की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से सबसे निवेदन करती हूँ कि आप फीडबैक फॉर्म फिल कर दें। लिंक चैट बॉक्स में है और आप शेयर कर दिया गया है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके फीडबैक फॉर्म फिल कर दें। साथ ही अगले एपिसोड का लिंक भी चैट बॉक्स में है, तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि बुधवार 29 जुलाई को है, दोपहर 3 से 4 बजे, और उसका विषय है डिजिटल और सोशल मीडिया। तो लिंक चैट बॉक्स में है, कृपया आप वहाँ पे भी रजिस्टर कर दें। धन्यवाद। अब हम क्वेश्चन आंसर्स राउंड की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है एक पार्टिसिपेंट का, जो पूछते हैं कि व्हाट रोल डज लैंग्वेज प्ले इन प्रिंट मीडिया?
मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब तो हम दे चुके ये हैं सवाल, हाँ कि जी सर, ये सवाल तो हाँ हमारा हो ही चुका है। एक सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये है कि जैसे हम देखते हैं कि अब इंटरनेट और डिजिटल का टाइम आ गया है और मीडिया कंज्यूमर अब मीडिया प्रोड्यूसर भी बनने लगा है। सो बहुत तरह के मीडिया हम ऑनलाइन चीजें देखते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा वर्नाकुलर मीडिया पे, या इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा लैंग्वेज मीडिया पे? और देखिए, डिजिटल मीडिया तो हम नेक्स्ट इशू में उसके बारे में बात भी करने जी वाले जी। हैं। डिजिटल मीडिया ही भविष्य है, और ये हम सब लोग बहुत समय से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं। न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स भी जानते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम पिछले 10 वर्षों से सारे समाचार पत्रों ने, सारे चैनल्स ने इस बात को समझ लिया। समझने के बाद क्या किया, उन्होंने अपने को डाइवर्सिफाई करना शुरू। और कोविड-19 ने सबको ये बात रातों रात समझा दी। तो जिसने कभी नहीं समझा था वो भी समझ गया, जो कम समझा था वो कोविड के चक्कर में ज्यादा समझ गया। अब सबको समझ में आ गया कि डिजिटल मीडिया ही है। आज हम डिजिटल मीडिया की बदौलत ही ये वेबिनार कर पा रहे हैं। तो हालांकि हमने पिछले साल भी जब आईकैन किया था तो एक सेशन किया था जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हमने ऑनलाइन जोड़ा था, बट देन वो सिर्फ एक सेशन था। अब हमने आई कैन किया तो 100% सेशन हमने उसी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किए। तो अब जब डिजिटल आ गया तो डिजिटल में भाषा का भेद ज्यादा रहा नहीं। वैसे भी देखिए, अगर हम भाषाई पत्रकारिता की बात करते हुए मैंने भी इतनी सारी बातें कही, डॉक्टर सुष्मिता बाला ने भी इतनी सारी बातें कही, लेकिन ये सबके ऊपर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मीडिया की भाषा कोई रूढ़ नहीं है, रिजिडिटी नहीं है। मतलब ये हुआ कि अब भाषा को लेके बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। एक जमाना था 1980 के दशक में, इवन 1990 में भी यही चला, जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कोर्सेज शुरू किए तो एक हिंदी पत्रकारिता शुरू हो जाता था, एक अंग्रेजी पत्रकारिता हो जाता था। अभी भी इंसिडेंटली, वेरी इंटरेस्टिंगली, डीयू ने जो 2 साल पहले अपना 5 ईयर इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म का कोर्स शुरू किया है, उसमें एक हिंदी जर्नलिज्म कर दिया, एक हिंदी इंग्लिश जर्नलिज्म कर दिया। जबकि आज के समय में ये बातें बेमानी हो चुकी हैं। आज अगर आप पत्रकार हैं तो ठीक है, आप एक भाषा का चुनाव तो कर ले रहे हैं जिसमें आप काम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी भाषाओं में काम नहीं कर सकते या दूसरी भाषाओं में आपके पास मौके नहीं है। मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे सकता हूँ। राहुल कंवल को लोगों ने देखा होगा, इंडिया टुडे जो इंग्लिश का चैनल है उसमें काम करते हैं। तो जब इंडिया टुडे का शुरू में हेडलाइंस टुडे था, जब एक अंग्रेजी चैनल आज तक ने शुरू किया था, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया था और उनको अंग्रेजी बहुत इंग्लिश। कम आती थी। वो अंग्रेजी के ही पत्रकार थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हुई और वो एडिटर के लेवल तक पहुंचे तो हिंदी के अखबार तक भी, हिंदी के चैनल तक भी उनकी उनकी जद में आ गया, उनके उनके जुरिस्डिक्शन में आ गया, और वो हिंदी में भी करने लगे। और अब आज आप देखिए वो हिंदी में अच्छे प्रोग्राम करते हैं। तो आपको चाहे प्रोफेशन में पहले चाहे प्रोफेशन में रहते हुए सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। अगर वो हिंदी नहीं सीखते तो उनका जो रेंज है, जो अब इतनी दूर तक लोगों तक पहुंच गया, नहीं पहुंचता। आप देसाई का एग्जाम्पल ले लीजिए, बाला मैम क्या नाम है जो राजदीप राजदीप सरदेसाई, सरदेसाई। वो हिंदी इंग्लिश का पत्रकार है, उनको तो हिंदी आती नहीं थी। अब आज देखिए वो हिंदी में बढ़िया प्रोग्राम करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं जहां वो धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये आपको या तो पहले करना सीख लेना पड़ेगा, पहले सीख लेंगे तो आपकी बढ़त रहेगी जब आप प्रोफेशन में चाहते हैं। तो ये डिजिटल मीडिया पर भी उतना ही अप्लाई करता है। डिजिटल मीडिया के जो कंटेंट हैं, और मैं फाइनली बस एक बात और कहूंगा क्योंकि बाकी डिजिटल मीडिया के हम अगले एपिसोड में बात कर लेंगे। डिजिटल मीडिया में आप देखिए कि आप जो भी चैनल या जो भी न्यूज पोर्टल्स, जो भी वेबसाइट आप इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर अंग्रेजी में भले ही हो, उनमें हिंदी का ऑप्शन होता है। ठीक है, आप खोलते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाता है। तो आप हिंदी चाहे हिंदी को दबा दें तो आपको सारी स्क्रिप्ट हिंदी में पढ़ने को मिल जाती है, इंग्लिश में दबाए तो आप इंग्लिश में पढ़ ही रहे हैं। मैं तो अपने मोबाइल में खोलता हूँ तो उसमें जो भी सेटिंग में प्रॉब्लम आ गई है, मैं चाहे वो प्रिंट में कुछ भी देखूं, चाहे वो वायर पे देखूं, वो हिंदी में आ जाता है। फिर मैं उसको कोशिश करके इंग्लिश में करता हूँ कि मैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। तो अब ये भाषा की तो बात ही खत्म हो गई। आप प्रिंट में काम करते हैं, अंग्रेजी के जर्नलिस्ट हैं, न्यूज रिपोर्ट अंग्रेजी में लिखी, वो हिंदी में भी उपलब्ध है लोगों को।
तो भाषा तो बिल्कुल ही बेमानी हो गई इस तरह के केस में। तो इसलिए अब डिजिटल मीडिया के जमाने में भाषा कौन सी आप जानते हैं लिखते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, अगर आपको एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं या आप एक से ज्यादा भाषाओं में काम कर सकते हैं तो आपके लिए नए होराइजन खुल जाते हैं और आपकी पहुंच जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एज ए जर्नलिस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बाला मैम, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें, देन वी विल कंक्लूड विद टुडेस एपिसोड। ओके, रिमार्क ऐसे तो मैंने लास्ट रिमार्क दे ही दिया है, लेकिन एक बात और करना मैं ऐड कर सकती हूँ यहाँ पर कि जब भी जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गई वहाँ पर हिंदी का रेडियो चैनल चल रहा था जिसमें उन्होंने जितने भी वहाँ पर हिंदी के लोग थे उनसे स्क्रिप्टिंग कराना, म्यूजिक के प्ले करना, कर्नाटक एंड इंडियन म्यूजिक, उसके अलावा लैंग्वेज से रिलेटेड जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, वहाँ लैंग्वेज की बात की जा रही थी। तो वो मुझे बड़ा अपीलिंग लगा क्योंकि हम इंडिया में रह के जब अब आउटसाइड कंट्री जाते हैं तो अगर वहाँ हिंदी, और वैसे ही यूएस में भी हिंदी को इतनी प्रेफरेंस दी जा रही थी, और जो लोग हिंदी, जैसे मैं काफ़ी हिंदी बोलती हूँ और मेरे साथ इर्द गिर्द भी कुछ लोग थे, वो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, अपीलिंग लगा, और उन्होंने ये कहा कि हम लोग यहाँ पर भी, जैसे हमारे यहाँ है एक विदेश सर्विस है, एनएसडी है, और उसमें भी हम जब न्यूज़ सर्विस डिवीज़न का, एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न की जब बात करते हैं तो वहाँ भी हमारे लैंग्वेज रिलेटेड बुलेटिन बहुत सारे हैं जो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो बाहर आउटसाइड कंट्री में भी ऐसा नहीं है कि हिंदी की इम्पोर्टेंस नहीं है, वहाँ बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस किए जाते हैं, हर साल हिंदी जर्नलिज्म की मीटिंग की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग शायद उसको थोड़ा सा शायद हेजिटेट फील करते हैं हिंदी बोलने में या काम करने में। तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश अगर आपकी स्ट्रांग है तो हिंदी स्ट्रांग होगी, तो दैट विल बी सपोर्ट फॉर यू। और हमें दोनों भाषाओं पर उतना ही कमांड करने की कोशिश करनी चाहिए जितनी की हम कर सकते हैं। Thank you, ma'am. It was indeed a very insightful and enlightening session, and I request everyone once again to please fill the feedback form and stay tuned with us for our next episode on digital and social media on July 29, for which link has been provided in the chat box, and you can register yourself. So hope to see you all in the next episode. Thank you. At Delhi Metropolitan Education DME, we have an excellent infrastructure. We have a studio for production. We